Okay, we are doing combined mean. What is combined mean? When two or more distribution are given with their number of items and arithmetic means, the combined mean can be calculated. Two or more distribution means like this is mean, this is first mean, this is second mean. It is two when more distribution is given. So in that case, like this is mean 1 is given and the number of item of mean 1 is also given, plus number of item of second mean is given and number of and mean 2 is given. So it is two combination of mean is given. So in that case we can find out a combined mean of 1 and 2, and this is observation. Now x bar 1 and 2 means combined mean. X bar 1 mean arithmetic mean of first distribution. X bar 2 means arithmetic mean of second distribution. N1 is number of items of first distribution and N2 is number of items of second distribution. Okay, so this is a formula. Now the first question we are doing combined mean. Find out the combined mean from the following data. Now in this data mean is given and number of item is given. So series x1 is given, series x2 is given. So that means this will be the x what we want this, we are doing this formula. So x1 is, because this is first series, so this is mean 1, this is second series mean 2, this is n1 and n2. So I have to first write down what is x1. X1 is 12, x2 is 20, n1 is 80 and n2 is 60. Put up the value here. When you put up the value and you solve, you will get the correct answer. So what value I have to keep here? Mean 1 and 2. n1 is 80 into 12 plus 60 into 20. n1 is 80 plus 60. So when I am solving this, it will be 960 plus 1200 and it is 140. So when I solve it, I will get 15.43. So my combined mean of 1 and 2 is 15.43. This is the answer. Correct. So it is the easiest one. Now the second one is the average. The word average is used. The average means we have to calculate the mean. The average rainfall of a city from Monday to Saturday. मतलब Monday to Saturday is 6 days, है ना? So the average rainfall of a city from Monday to Saturday is 0.3 centimeter. Okay. Now due to heavy rainfall on Sunday, the average for the whole week rose to 0.5 सेंटीमीटर. मतलब संडे को हेवी रेनफॉल हुआ उसके कारण एवरेज पूरे वीक का एवरेज बढ़कर जो पहले 0.3 था वो 0.5 हो गया. हाउ मच वॉज द रेनफॉल ऑन संडे. अब मुझे ये बताना है कि संडे को कितना रेनफॉल हुआ था, जिसके कारण पहला जो मीन था वो 0.3 था और बाद में वो एवरेज बढ़ के 0.5 हो गया. मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे कंसीडर करना है रेनफॉल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मतलब 6 डेज जो है वो n1 कंसीडर करना है और हमें फिर सेकेंड रेनफॉल संडे का करना है, मतलब 1 डे का. तो n1 और n2 हमको n1 क्या हो गया, सो n1 विल बी 6 डेज एंड n2 विल बी 1 डे. ये हमको फाइंड आउट, ये हमें मालूम है. नाउ x1 क्या है, x1 हमारा कितना बताया था, दैट इज़ 0.3. दिस इज x1 एंड x2 हमको नहीं मालूम क्योंकि हमें एवरेज मालूम है, दोनों का कंबाइन एवरेज है 0.5. सो कंबाइन मीन हमारे पास है 3.5. नहीं सॉरी x1 and x2 is 0.5. Sorry, it is 0.5. It is 0.5. Here it is 0.5. Now what we have to find out, we have to find mean 2, क्योंकि ये हमें निकालना है. ये मतलब संडे को कितना बारिश था, what is the mean of Sunday, है ना. So now you put up the formula values in the formula. So your n1 is पहले तो mean आपका 0.5 है. Then your n1 is 6 into 0.3 and then plus n2 is 1 into x2 we don't know, mean of second is we don't know, and the number is 6 plus 1. So जब आप इसको solve कर रहे हो, it will be 3.5 is equal to 1.8 plus mean 2
ये कैलकुलेट करो। सो आपका मीन 2 क्या निकला, इनको आपस में माइनस करो, यू विल गेट 1.7। सो आपका रेनफॉल ऑन संडे को आपका एवरेज रेनफॉल क्या है 1.7। ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। एक और भी इसको प्रैक्टिस करना, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ठीक है। नाउ दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन क्लास इज़ 5। ठीक है। एवरेज मार्क्स 50 स्टूडेंट क्लास में जो है उसके 5 है। द पास रिजल्ट ऑफ 40 स्टूडेंट। अब 40 स्टूडेंट का जो पास रिजल्ट है, जिन्होंने भी टेस्ट दिया है, वो ये दिया हुआ है, पास रिजल्ट इज़ गिवन। कैलकुलेट मीन मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स हु फेल। मतलब ये तो टोटल है, कंबाइन है ना, तो ये कंबाइन एवरेज आपको पता चल गया। ओके। अब इसमें से जो 40 जिन्होंने टेस्ट दिया है उनकी ये बता के रखा है, तो आपको इसका मीन यहाँ से निकालना है ना, x1 आपको यहाँ से निकाल लेना है। और जो 10 स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं उनका कैलकुलेट आपको करना है मीन। सो x1 तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। सो x1 के लिए फॉर्मूला क्या है, हमको मालूम है, डायरेक्ट मेथड है सिग्मा एफ एक्स बाय एफ। x दिया हुआ है, f का मैं टोटल निकाल लूँगी, f का टोटल विल बी 40 एंड इसको आपस में मल्टीप्लाई करो इन दोनों को। सो यू विल गेट 32, 50, 54, then 42, then 32 and then इसको इसके मल्टीप्लाई करो, you will get 27. The total is 732. This is the total. Now put up the value. 237 divided by f is 40. ठीक है। सो कैलकुलेट दिस, यू विल गेट मीन फर्स्ट का मिल जाएगा आपको 5.925। ओके, दिस इज़ द मार्क्स। ठीक है। सो आई हैव गॉट माई x1, मुझे अपना x1 मिल गया। सो व्हाट वी हैव, यहाँ पे क्या क्या मेरे पास था, यहाँ पे मेरे पास था नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मेरा था n1 था मेरा 40 स्टूडेंट हु आर पास्ड, n2 है 10 स्टूडेंट जो कि फेल हुए हैं, है ना। और पहला x1 मुझे मिल गया है, x1 आई हैव गॉट जो पास था x1 5.9। सो 5.925 मेरे पास x1 हो गया, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ओके। और x1 एंड 2 ऑलरेडी 5 यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, एवरेज द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन्होंने ऑलरेडी x1 एंड 2 हमें दे रखा है। तो x1 एंड 2 आई हैव, x1 हमने अभी निकाला, n1 एंड 2 आई हैव एंड x2 हमें फाइंड आउट करना है। सो वैल्यू पुट अप करो, ये आपका x1 एंड 2 आपका क्या था 5 था, n1 आपका क्या है 40 मल्टीप्लाई बाय जो हमने निकाला 5.925 प्लस n2 क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय x मीन 2। ठीक है। n1 40 प्लस 10। सो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट 250 इज इक्वल टू 237 प्लस 10 मीन हो गया आपका, एंड देन इसको आप पूरा सॉल्व करो, इसको इससे माइनस कर दो एंड देन डिवाइडेड बाय 10, यू विल गेट मीन 2 इज इक्वल टू 1.3। सो जो 10 स्टूडेंट एवरेज मार्क्स जो फेल्ड है, एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स हु फेल्ड इज इक्वल टू 1.30 मार्क्स। करेक्ट। सो ये हो गया आपका ये वाला। ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट बट अ लिटिल बिट प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ द फोर्थ वन, द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स इज ₹284। सो आपको मीन वेज पता चल गया 100 वर्कर्स का 284। सो ये आपका कंबाइन मीन होगा। करेक्ट। 284 इज़ द कंबाइन मीन, क्योंकि 100 वर्कर्स का उन्होंने बोला है। सो हम यहाँ लिख देते हैं कंबाइन मीन इज़ 284। द मीन वेज ऑफ 70 वर्कर्स इज़ 290। अब इस 100 में से 70 वर्कर्स है, तो n1 इज़ योर n1 इज़ योर 70, n1 इज़ 70 एंड x1 इज़ 290। करेक्ट। फाइंड द मीन वेज ऑफ रिमेनिंग 30 वर्कर्स, n2 इज़ 30 पर हमको x2 नहीं मालूम। अगेन द सेम फॉर्मूला इज़ देयर, बस पुट अप कर दो वैल्यू इज़ 284 इज इक्वल टू n1 कितना है 70 मल्टीप्लाई बाय x1 है 290 प्लस n2 is 30 but we don't know mean 2, correct, and this is 70 plus 30. So when I am solving it will be इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सो 28400 हो गया एंड दिस विल बी 23
300 हो गया, प्लस 30 मीन 2 कर दिया, करेक्ट. नाउ इट विल बी, इसको यहाँ ले आते हैं एंड इसको आपस में कर देते हैं, देन वी विल माइनस कर देते हैं, वी विल गेट इतना. देन ये मीन को इधर रखते हैं, इसको आपस में डिवाइड कर देते हैं. 8100 बाय 30, इट विल बी ₹270. सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर. सो आई एम राइटिंग, मुझसे पूछा क्या था, मीन वेज ऑफ रिमेनिंग 30 वर्कर्स है. तो मीन वेज ऑफ 30 वर्कर्स is equal to ₹270. So this is my answer. Okay, so we have done combined mean. Please practice all the questions.